بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد حامد کی اعزاز میں یہ آج جو تعزیتی ریفرنس منعقد کیا جا رہا ہے اس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. میں کچھ آیات تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اب میں ریکویسٹ کروں گا عثمان صاحب سے کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو پیکج ہے ابو کی لائف کی کچھ ایونٹس کا، وہ ذرا اگر شیئر کر لیں. جس جگہ پہ ہے ناز شہاں کی صورت، حاضری میری ہو جا سب لوگ چلے آتے ہیں، دور و نزدیک سے سب لوگ چلے آتے ہیں، رشک سے تکتی ہے گورا رواں کی صورت، رشک سے تکتی ہے گورا رواں کی صورت. کون کہتا ہے کہ مرکد میں آرام کناں، ہے کہ مرکد میں ہے آرام کناں. میں نے دیکھا ہے
ریکویسٹ کروں گا کرنل خاور ایوب سے جو ہیں موجود کہ اگر وہ پہلے دعا فرما دیں ابو کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم فارملی آغاز کریں گے. تو سب بہتر ہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ. یہ سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ ان کے لیے ہم دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین. ربنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہمارے بھائی ڈاکٹر کرنل محمد حامد مرحوم کو معاف فرما دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما اور ان کا خلیفہ بن جا ان کی اولاد میں اور پیچھے رہنے والوں میں. یا رب العالمین ہمیں انہیں بخش دے اور ان کی قبر میں ان کے لیے کشادگی فرما اور اس میں ان کے لیے روشنی فرما. اے اللہ ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما اور انہیں عافیت عطا فرما اور انہیں معاف فرما اور ان کی بہترین مہمانی فرما اور ان کی قبر کو کشادہ فرما اور انہیں پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور ان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. انہیں اس گھر کے بدلے میں بہترین گھر عطا فرما اور جنت میں بہترین ساتھ نصیب فرما. انہیں اور گھر والوں کو جنت میں اکٹھا فرما اور عذاب قبر اور عذاب آگ سے بچا. اللہ ان کے جو اہل خانہ جو ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. ہم سب کے بھی خاندان میں سے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان پر بھی رحمت اور بخشش کا نزول فرما. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما اور محض اپنے فضل و کرم سے نیکیوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ڈاکٹر کرنل محمد حامد مرحوم نے جو صدقہ جاریہ اپنی کتابوں و تصانیف اولاد فلاحی کاموں کی شکل میں پیچھے چھوڑا ہے اس میں برکت نصیب فرما. اسے حفاظت اور دعام عطا فرما. اسے قبول کر کے ان کے جنت میں درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو آپ کی مہربانی اور رحمت ان پر ہوتی ہے اور وہ ہدایت پانے والوں میں ہوتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمیں بھی اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے. یا اللہ
हमारे भाई या अल्लाह डॉक्टर कर्नल मोहम्मद हामिद ने या अल्लाह कसीदा बुर्दा शरीफ के आखिर में या अल्लाह तुझसे यही दुआ मांगी थी कि आले असहाब ते ताबे सब ते तेरी रहमत मौला नेकोकार ते आलम जाहद सब ते शफकत मौला। या अल्लाह ये दुआ जो तुझसे वो मांग के गए हैं या अल्लाह हमारे हक में भी उनके हक में भी या अल्लाह क़यामत तक जितने भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह जितने भी उम्मतियाँ आए हैं या अल्लाह उनके हक में कबूल फरमा ले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी जज़ाकल्लाह। कर्नल ख़ावर अयूब का मैं तारुफ करा दूं कि अब्बू और अम्मी दोनों के फर्स्ट कज़न भी हैं और बहुत ही ज़्यादा अब्बू से खसूसी लगाव कर्नल ख़ावर को भी था और अब्बू को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार। तो माशाल्लाह उस दुआ में भी उसकी झलक नज़र आई। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा राजा ज़फ़रुल हक साहब से जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं और अब्बू की बड़ी खसूसी लगाव और एहतराम राय साहब के लिए था और हम सारों का भी है। तो आपसे राय साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ कलमात अब्बू के लिए अदा कर दें। श्याम साहब, एक छोटी सी दरख्वास्त है, इससे पेशतर कर राजा साहब कुछ फरमाएं। अगर जी जी आप मुनासिब समझें तो जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं वो अपना अपना जी जी तारुफ करवा दें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन है। मैं इब्तिदा करता हूँ। मेरा जी नाम बिल्कुल ठीक है, शुएब बिन बिल्कुल जी, मेरा नाम जी बिल्कुल अंकल मेरी स्टार्ट। आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ जी जी रही है बिल्कुल आ रही है, जी और बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल तस्वीर भी आ रही है। मेरा जी नाम जी शुएब बिन अजीज़ है जी, शुएब बिन अजीज़। मैं हामिद साहब के बहुत पुराने साथियों में से हूँ जी, शुएब बिन अजीज़। ठीक है जी। अ, अंकल हामिद शरीफ आप अगर करा दें इंट्रोडक्शन बारी बारी सब लोग करवा दें। करवा दें। हाँ जी मैं एक एक करके कहता हूँ जी अंकल प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हामिद शरीफ है। मैं कर्नल हामिद साहब को 1983 से जानता हूँ, जब मैं इंग्लैंड से वापस आया पाकिस्तान। तो आजकल मैं बेजिंग में हूँ। थैंक यू। अंकल फरूक करीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी पहली मुलाकात हामिद साहब से ग़ालिबन 1974 या 76 में हुई होगी, some years even before my own marriage। और अब उनके बेटे सुहेब साहब जो हैं, he is my son in law। तो हमारी रिलेशनशिप इस तरह ओवर द इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ गई। तो मैं कहता रहता हूँ कि मेरे लिए तो अब भी हामिद साहब के लिए टू स्पीक ऑफ हिम इन द पास्ट टेंस इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट। जी थैंक यू अंकल। डॉक्टर अरशद महमूद। अस्सलामु अलैकुम। मैं कर्नल मोहम्मद हामिद साहब का एक अदना न्याज़मंद हूँ। अरशद महमूद नाशाद मेरा नाम है और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूँ और 25 साल से मैं कर्नल साहब के साथ वाबस्ता हूँ और शेर व अदब के हवाले से भी, वैसे भी उनकी शख्सियत का बहुत ज़्यादा असर है और मैं उनसे अक्सर व बेशतर मुलाकात करता रहा हूँ। थैंक यू जी। महमूद रहमान साहब। जी मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और कर्नल साहब की रिटायरमेंट से कुछ थोड़ा सा पहले से उनसे वाक़फ़ियत हुई थी और मैं उनका कुछ अर्सा इलाज भी करता रहा हूँ। उनकी मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी मैं काम करता हूँ। वैसे तो MBBS किया था मैंने 1980 में। तो उनकी वफ़ात से बल्कि चंद रोज़ पहले उन्होंने फ़ोन भी किया और बताया कि वो क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। साहबजादा उज़ैर साहब और मेरे ख्याल है साहबजादा साजिदुर रहमान साहब भी तशरीफ रखते हैं, तो अगर इंट्रोड्यूस करा दें। जी
جی السلام علیکم جی. वालेकुम सलाम. साहिबजादा उज़ैर हाशिम जी मेरा नाम है जी. और मेरा तारुफ यही है कि आप मेरे भाई हैं. कर्नल साहब मोहतरम जो है वो मेरे बुजुर्गों में से थे और वालिद साहब के बहुत ही करीबी दोस्तों में. और उनके लिए कुछ कहना, वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो इस वक्त मामू जान यहाँ मौजूद हैं. ऐसी शख्सियत के होते हुए कोई और क्या कहेगा जी. जी, शुक्रिया. 2-3 लोग अभी इसमें हमारे मुझे इस वक्त क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल के नज़र आ रहे हैं, सो अगर काइंडली आप लोग अनम्यूट करके अपना तारुफ करा दें, क्योंकि नाम से वाज़ेह नहीं हो रहा वो फ़ोन से. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ब्रिगेडियर फ़रोग़ अंजुम और आप मेरे नाम से वाकिफ़ होंगे. कर्नल हामिद मेरे उस्ताद थे. जी, थैंक यू अंकल. अच्छा जी, शायद उसके अलावा जी जी. वो ऐसे उस्ताद थे कि आज मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं, उससे उनका इस मौके पर जिक्र नहीं किया जा सकता. वो ऐसे मोहसिन थे मेरे, वो मेरे ऐसे दोस्त थे, वो मेरे ऐसे उस्ताद थे, वो मेरे ऐसे गमखार थे, वो मेरे ऐसे हर चीज में शरीक थे. वो मुझे हिदायत देते थे. मेरे वालिद साहब से उनकी बहुत मुलाकात थी. वो भी शायर थे, ये बहुत इज्जत करते थे वालिद साहब की. बैठते थे. मैं चिकलाला स्कीम 3 में रहता था, मैं जेएस हेडक्वार्टर में था, तो फिर उनसे मुलाकात रही. जब भी अब मैं लास्ट टाइम बहुत दिनों से, जब ये कोरोना फैला है, तो एक दफा लाहौर तशरीफ लाए थे. उन्होंने मुझे यहाँ के टेलीफोन किया था, मैं नहीं जा सका. वो वापस चले गए. उनको एलर्जी होती थी, कुछ दिनों में वो आ जाते थे यहाँ, लाहौर डिफेंस में आते थे जब एक पोलन वगैरह की हो जाती थी. लेकिन मुलाकात रहती थी. मैं बहुत फख्र के साथ उनसे बात करता था, मुझे फख्र होता था उनसे बात करने में. उनके शेर मुझे वो ये शेर उनके याद हैं जो कि शायद उनको भी ना याद हो. वो इतने इतने इतनी अजीम चीज थे. मेरे पास उनका अटक पे जो पंफलेट है वो, मेरे पास उनकी किताबें, मेरे पास उनकी हाथ की तहरीरें, मेरे पास उनकी बहुत यादें हैं उनकी. और उनके लिए बहुत दुआएं थीं और बहुत दुआएं हैं. अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा ऊंचा मर्तबा दिया था दुनिया में. और मुझे ये यकीन है बेटा कि वहां पे भी अल्लाह ने उनको बहुत ऊंचा मर्तबा दिया हो. अल्लाह उनको बहुत ऊंचे मनासिब दे. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया अंकल. थैंक यू जी. अब अगर कुछ लोग रह गए हैं तो वो काइंडली अपना करा दें तारुफ, क्योंकि कुछ इन लॉगिन से हैं कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा. अगर सब बुजुर्गों ने करवा दिया तारुफ तो मेरा नाम सैयद अवैस नकवी है. पहली तो खुशकिस्मती मेरी ये है कि डॉक्टर साहब के कदीमी साथियों को आज समाअत करने का मौका मुझे मिल रहा है. और मेरी डॉक्टर साहब से बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी में कभी मुलाकात ना हो सकी. उनके जनाजे पे उनका मतलब पहली दफ़ा ज़ियारत हुई, फ़ोन पर उनके साथ रब्ता था. और तहरीक तामे मस्कीन एक उन्होंने शुरू की थी जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है. मैं उसका जी मरकजी कोऑर्डिनेटर हूँ और डॉक्टर साहब ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाल के गए हैं. जज़ाकल्लाह. सैयद अवैस नकवी नाम है. जी, थैंक यू अवैस. आई थिंक अब जी शाम भाई, शाम साहब. जी 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 मैं अर्ज करूं थोड़ा सा कि राजा साहब, मुनासिब ये होगा कि राजा साहब इख्तितामी कलमात कहें, उनसे आगाज ना करवाएं. हम जैसे जो लोग हैं वो पहले गुफ्तगू कर लें. मैं सिर्फ राय साहब से सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर तो वो राय साहब के पास वो अगर एंड तक होंगे तो फिर हम जो है वो कर लेते हैं, वरना अगर राय साहब अगर कोई आपकी इस तरह की मसरूफियत है तो हम शुरू आपसे कर लेते हैं, जैसे आप मुनासिब समझते हैं. अब बहुत तवील नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, आधे घंटे में, पौने घंटे में फारिग हो जाएंगे. जी अंकल, मेरे ख्याल है राय साहब से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मल करते हैं. ठीक है.
جی انکل رائز ظفر الحق صاحب. مجھے بہت افسوس ہے اور غم ہے کرن صاحب سے بچھڑ جانے کا. ان سے کوئی 25-30 سال سے تعلق ہے اور ہر دفعہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک ہمدرد اور انتہائی مخلص دوست کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہمیشہ تعلق رہا اور ایک ان کے چہرے کے اوپر ایک معصوم سی مسکراہٹ میں نے ہمیشہ دیکھی جس میں ہمدردی اور بالکل کھلے پن کا اظہار ہوتا تھا. اور یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض حضرات کے زندگی کے دوران شاید آدمی ان سے اتنا متاثر نہ ہوا ہو، لیکن جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے تو جس قسم کا خلا ان کی وفات سے پیدا ہوتا ہے اس سے ان کی عظمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ کیا کچھ تھا جو ہم کھو بیٹھے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے جس میں کوئی شخص دخل نہیں دے سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی ایک نہایت مکمل مسلمان کی زندگی تھی اور جو کچھ انہوں نے پڑھا اور دین کے بارے میں جو ان کی معلومات تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلیت عطا فرمائی تھی اس میں سارا ان کا اپنی شخصیت کے اوپر زیادہ اثر تھا بنسبت اس کے کہ جو انہوں نے باقی دنیا کو دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مثالی مسلمان شخصیت تھے جو صاحب علم بھی تھے، جو جتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جتنی بڑی مستند کتابوں کا انہوں نے تراجم کیے ہیں اور جتنا انہوں نے تحصیل علم کی تھی اور جو روحانی طور پر ان میں جو کشش تھی وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، قلبی تعلق تھا، اور جو جس کا اظہار قصیدہ بردہ شریف کے تراجم جو انہوں نے کیے ہیں وہ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کیسا گہرا اور عقیدت کا، محبت کا تعلق تھا ان کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے انسانوں کا موجود رہنا نہ صرف اپنے حلقہ احباب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے اور بیرون ملک کے لیے بھی، جہاں تک بھی ان کی آواز گئی ہے، وہ جو محرومی اب ہے اللہ تعالیٰ اس کو پر کرے، ان کی اولاد کے اوپر اپنا کرم کرے، ان کے دوستوں کے اوپر اپنا کرم فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہی دعا آج بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ انکل آپ کی نیک تمناؤں کا اور دعاؤں کا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. اور میری اب ریکویسٹ ہے انکل شعیب بن عزیز سے، جن کے ساتھ بہت ہی پرانا ابو کا ساتھ ہے، تو انکل شعیب اگر آپ پلیز ذرا آغاز کر دیں دوستوں کی طرف سے. جی السلام علیکم. جی بیٹا بات یہ ہے کہ حامد صاحب سے میرا تعلق جو ہے، میں بھی دوستوں سے باتیں سن رہا تھا، کوئی 16 سال سے، کوئی 17 سال سے، تو میرا اعزاز یہ ہے کہ میرا تعلق ان سے سب سے زیادہ عرصے پہ محیط ہے. میری ان سے پہلی شناسائی سن 65 میں ہوئی اور یہ 221 جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نصف صدی کا قصہ ہے، نصف صدی سے بھی زیادہ کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. حامد صاحب جب آئے اسلامیہ کالج میں پڑھانا، میں مختصراً بات کرنے کی کوشش کروں گا. حامد صاحب پہ تھوڑی سی بات کروں گا اور پھر اس کے بعد کچھ میرے پاس تجاویز ہیں وہ میں دے دوں گا، اور میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ حامد صاحب کے بارے میں تو جتنی باتیں بھی کی جائیں کم ہیں، اور میں اگر ان کے بارے میں اپنی یادداشتیں بیان کرنا شروع کروں تو اٹ ول ٹیک ٹائم، بہت زیادہ وقت صرف ہوگا اس میں. تو اسلامیہ کالج میں جب یہ 65-67 میں جب آئے تو ان کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ حامد صاحب جو ہے ہی از ینگیسٹ
master in one of the youngest masters in English literature. और इनका कद्दो कामत भी और इनकी शक्ल शबाहत भी बिल्कुल और इस तरह की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये कम उम्र दिखाई देते थे। तो उस वक्त उनसे एक ताल्लुक खातिर पैदा हुआ जो मरते दम तक, आखिरी दिनों तक, आप इससे से अंदाजा कीजिए कि आप उस वक्त मेरे घर तशरीफ लाए तो उनकी डायरी पे जो आखिरी तहरीर थी, वो इत्तेफाक की बात यह है कि वो मेरे पिछले दिनों मेरे भाई का इंतकाल हुआ, छोटे का, तो उस हवाले से मैंने कुछ लिखा तो हामिद साहब ने मुझे कहा कि मुझे लिखवा दें। तो वो आखिरी तहरीर थी जो उन्होंने अपनी डायरी पे दर्ज की, जो आपके पास अभी महफूज है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हामिद साहब के साथ ताल्लुक का वहाँ से शुरू हुआ, और जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि हामिद साहब की शायरी बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि हामिद साहब ज़िया तखल्लुस करते थे। तो शाम साहब आपको पता है? नहीं पता, मान लें ना? नहीं जी, नहीं जी, नहीं पता जी। हाँ, और नहीं पता। मुझे उनका ये मक्ता नहीं भूलता कि चश्मे नरगिस से कोई पूछे ज़िया क्यों उसका रंग, चश्मे नरगिस से कोई पूछे ज़िया क्यों उसका रंग, चाहने वालों के खून में डूबकर भी जर्द था। तो हामिद साहब का एक अंदाज था, वो रवायती आदमी थे लेकिन शायरी में बड़ी ताज़ाकारी थी उनके, नए मज़ामीन बांधते थे वो, और लेकिन उन्होंने शायरी को अपना मतमा नज़र नहीं बढ़ाया, उनकी मंजिल कहीं और थी, उनकी नज़रें कहीं और थीं, और मैं समझता हूँ कि उन मंजिलों के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, उनमें एक बड़ी कुर्बानी उनकी शायरी की कुर्बानी थी, जो किसी फनकार के लिए, किसी तख्लीक़कार के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। मुझे यूँ लगता था कभी कभी कि हामिद साहब खुद भी भूल चुके हैं कि वो शायर हैं, लेकिन शेर फहमी और शेर में दिलचस्पी उनकी आखिर दम तक कायम रही। उन्होंने नुमान साहब के लिए, जो मेरे छोटे भाई थे, जब मैं अब याद करता हूँ तो मेरा ज़ख्म जो है ताज़ा हो जाता है, अहमद साहब के लिए भी और नुमान के लिए। उन्होंने उर्दू में 2 शेर कहे आखिरी दिनों में नुमान साहब के लिए, और एक फ़ारसी में खत्ता लिखा, और मुझसे ये कहा कि नुमान साहब की कब्र की तस्वीर भेजें, और हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी दरगाह है, दर्स बड़े मियाँ, लाहौर में मुगलपुरे और बाबानपुरे के दरमियान, वहाँ दफन किया है। तो हामिद साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं और वहाँ की तस्वीरें, बड़े मियाँ के मज़ार की भी और नुमान साहब की कब्र की भी तस्वीरें मुझे भेजें। मैंने उन्हें लिखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उनका मुझे मैसेज आया कि अब आपकी तबीयत कैसी है। फिर मैंने उनको शाम को फ़ोन करके ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, इंशाल्लाह मैं एक आध रोज़ में कब्रिस्तान जाऊँगा और उन्हें आपको तस्वीरें भेजूँगा। उसके बाद फिर उनसे मेरा रब्ता नहीं हो सका, अगले रोज़ उनकी वफ़ात हो गई। तो आखिरी दिन तक, मेरा आखिरी दिन समझ लें या आखिरी दिन से एक दिन पहले तक उनसे रब्ता रहा। तो मैंने जैसे कर्ज करा कि ये लंबा एक दास्तान है, एक हदीस दोस्ता है, और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हामिद साहब एक यूनिक पर्सनैलिटी थे कि अदब से, तहकीक से, उनके जो मौज़ूआत थे उनसे जुड़े होने के बावजूद उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार नहीं की। वो दोस्तों के दोस्त थे, और दोस्तों से उनका ताल्लुक जो था वो उनका सरमाया था। वो जो गालिब ने कहा कि वो जिंदा हम हैं कि हैं रूशनास खल्क है खिज़्र, वो रूशनास खल्क थे असल में। और आज आपको जान के हैरत होगी कि यहाँ जितने लोगों से मेरा अभी मैंने देखा है, उनसे मेरा तारुफ है, लेकिन मैं कोई शख्स भी इनमें ऐसा नहीं है जिनके बारे में मैं नहीं जानता, और जाहिर है कि वो हामिद साहब की वजह से ऐसा है। वो दोस्तों से दोस्तों का जिक्र करते थे, उनकी खूबियां बयान करते थे, उनकी कामयाबियों पे खुश होते थे। तो जो तजावीज़ हैं वो फिर मैं शाम साहब आपसे मिल के आपको बता दूंगा। वो मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको महफूज कर लिया जाए, और एक कमेटी बना दी जाए जो उनकी पब्लिशिंग का इंतज़ाम करे। उसमें मुझसे जो भी खिदमत हो सकेगी मैं अंजाम दूंगा। और एक फेसबुक पे एक पेज उनका बना दिया जाए जिसमें लोग अपनी याददाश्तें इकट्ठी कर दें, उनकी चीज़ों को इकट्ठा करके उस पर डाल दिया जाए। और आखिर में बस यही दुआ कि अल्लाह मियाँ उनकी खबर को नूर से भरे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अंकल आपकी दुआओं का और आपकी तजावीज़ का। इंशाल्लाह इस पे हम इम्प्लीमेंटेशन कुछ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ जो आपने जिक्र किया 4 ज़ुबानों में, जो अब्बू ने उसका तर्जुमा किया,
उसकी कंपाइलेशन का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर दिया था, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ्स वो चारों ज़ुबानों में जो है वो तर्जुमा, जो इस वक्त सिर्फ पंजाबी का जो तर्जुमा है वो छपा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह चारों ज़ुबानों में इकट्ठा जो है वो छप जाएगा, और इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह उसकी कॉपी भी भिजवाऊंगा, और इंशाल्लाह उसकी हम वो करेंगे जी, बिल्कुल आपकी साथ मिलके उसकी तकरीब रुनुमाई है इस टाइप का इंशाल्लाह दोबारा से तमाम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया अंकल। अब मेरी रिक्वेस्ट है अंकल हामिद लतीफ़ शरीफ से, जो इस वक्त तो अंकल अगर आप कुछ कह दें। Thank you, Hisham. मैं ज़रा लाइट हार्ट रखूँगा बिकॉज़ डॉक्टर साहब से बड़े भाइयों की तरह थे, हमेशा बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे और बड़ी मोहब्बत थी। मैं हालाँकि पाकिस्तान से बहुत अरसे से बाहर हूँ, लेकिन उनसे राब्ता मेरा हमेशा रहा है। बल्कि मेरी उनसे मेरे ख़्याल में 2 हफ़्ते पहले ही बात हुई थी उनकी वफ़ात से, और हमेशा हमारी लंबी फ़ोन कॉल्स होती थी और बड़ा मज़ा आता था हमेशा। और अभी भी उनसे बात हो रही थी कि एक किताब के बारे में जिसमें हम मुझे सोच रहे थे कि रिसर्चर्स कौन हो, उसको कैसे कंपाइल करें, उसको कैसे आगे लेकर जाएं। मैं जब पाकिस्तान आया तो फ़ारूक कुरैशी साहब के थ्रू मेरी मुलाकात हुई, तो उस ज़माने में मेजर थे, तो हमारा जो स्टैंडिंग जो था कि वो मेजर हामिद हैं और मैं माइनर हामिद हूँ। वी यूज्ड टू हैव अ गुड लाफ अबाउट दैट। तो हमेशा मतलब है जी उनसे राब्ता रहा, और घर भी मैं काफ़ी आता जाता रहा, एज यू नो। एंड मैं शुएब साहब ने जो आइडियाज़ दिए हैं, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि एक जगह पे उनकी कंपाइलेशन हो, बल्कि उनकी जो और पब्लिकेशन या रीपब्लिकेशंस ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ हिज बुक्स, ये बहुत ज़रूरी काम है। और ख़ास तौर पे उनका जो जी बहुत मैंने उनकी जो पहली किताब इंग्लैंड में ही था, मैं अभी जो पढ़ी थी वो यही थी अपना इंडिया इज़राइल रिलेशंस के बारे में, जो कि उससे बहुत पहले मशहूर। इमाम शामिल उनकी किताब छपी थी। अच्छा, मेरे जब आई जी, तौर के इमाम शामिल बाद में उनकी जो पहली छपी है। किताब थी फिरोज सन्स ने अच्छा, छापी थी और उसका नाम था इमाम अच्छा। शामिल, हाँ और जी, वो ये भी मैंने पढ़ी है। जी, जी। उर्दू में इमाम शामिल की जिंदगी पे शाया होने वाली पहली किताब थी। अच्छा, अच्छा। तो मैंने वो पहले इंडिया इज़राइल रिलेशन अनहोली अलायंस के नाम से जो इनकी किताब थी उसको जी जी पढ़ा था। फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो इनसे मिला, तो उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स इमाम शामिल भी पढ़ी। उर्दू में इतनी तेज से नहीं पढ़ता, तो उर्दू की किताबों से मैं बड़ा महरूम हूँ। लेकिन मेरी जो इनसे लास्ट पिछले साल जब मैं पाकिस्तान आया था, तो इनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा। ये अपना जो ट्रांसलेशन है अपना फतवा आलमगीरी की, कि इसको कैसे पब्लिश किया जाए। ये डॉक्टर साहब बड़े परेशान थे इस बारे में कि इतना बड़ा काम हो गया, इसकी पब्लिकेशन नहीं हुई। तो इस तरह अगर ये कमेटी बनती है, तो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि ये किताब पब्लिश हो। ये बहुत बड़ा काम है, मतलब 10,000 सफ़े हैं इसके, और जी आई थिंक पहली दफ़ा अंग्रेजी में मुकम्मल ट्रांसलेशन है। तो आई होप वी कैन टेक हिज वर्क फॉरवर्ड। एक जो क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक एक बहुत क्रिएटिव माइंड था डॉक्टर साहब का अंटिल द एंड। इसीलिए उनसे गुफ्तगू का हमेशा मजा आता था कि एक आइडिया से अगला आइडिया निकलता जाता था उनके साथ, उनसे गुफ्तगू करते हुए। और अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। हमारा तो यकीन है कि जिस तरह वो नेक थे, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचा, और आखिर तक मतलब ये बहुत मुखय्यर थे, ये मुझे मालूम है। तो इंशाल्लाह he will be in a good place. Thank you. जी, थैंक यू वेरी मच अंकल, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड काइंड वर्ड्स। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकल जावेद जफर साहब से कि वो अगर अपनी कुछ यादाश्तें वो पेश कर सकें। अंकल आप म्यूट हैं, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। अंकल आप म्यूट हैं, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा।
माइक के ऊपर एक दफा प्रेस कर दीजिए ऑन योर सेल फोन। जी अब जी आवाज आ रही? जी अब आ रही है अंकल। अच्छा जी प्लीज। हामिद साहब से क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि उनका ताल्लुक मेरे वालिद मरहूम से यूसुफ ज़फ़र साहब से था, और कई मरतबा ऐसा हुआ कि वो मुझसे या मेरे छोटे भाई नवीद ज़फ़र से उनकी बड़ी मुलाकात रही। जब मिलने आते थे तो जैसे ही वालिद साहब उनको नज़र आते थे तो हम नज़रअंदाज हो जाते थे, और वो मुस्कुराते हुए कहते थे कि यू आर ए हैज़र्ड इन ए वेरी गुड कंपनी। तो मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा। और वो वालिद साहब के पास, वालिद साहब भी उनसे बहुत शफकत करते थे, और उनकी तकरीबन घंटों मुलाकात रहती थी। और ये मेरे वालिद की वफ़ात 1972 में हुई है, उससे पहले का ये कहने के वाक़यात हैं। फिर नवीद के साथ तो उनका राब्ता काफ़ी रहा। मुलाजमत में जब वो आए तो उन्होंने गालिबन मुकाबले का इम्तहान भी दिया था और आर्मी में कमीशन के लिए भी अप्लाई किया था। तो फिर उन्होंने दोस्तों से मुशावरत की कि भाई इनमें से किसका इंतखाब करना चाहिए। तो हम सब ने कहा कि चूंकि आपकी इल्मी रुझान है तबीयत में, तो आप ये सरकार की नौकरी क्या करेंगे मुंशीगिरी करके, आप ये एजुकेशन कोर में अगर चले जाएंगे तो उससे बहुत फ्यूचर जनरेशन के जो लोग हैं जो हमारी अफवाज में आएंगे वो आपकी सोबत से मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो मशवरा कबूल किया, और हमारे और भी दोस्त यानी मोहम्मद फ़हीम और अहमद ख़ान ये भी हमारे साथ रहते थे, और काफ़ी हमारी मुलाकातें रहीं थ्रू आउट। सबसे जो बेतहाशा खूबियाँ हैं उनकी, इंसान इब्तिदा कहाँ से करे और कहाँ से ना करे, उनका जो धीमापन था, अंदाज़ गुफ्तगू था, उसमें किसी किस्म की नख़वत, किसी किस्म की इल्मियत, किसी किस्म का तकब्बुर, किसी किस्म का अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करने की कोई मौहूम सी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं थी। हर एक की बात को सुनने का बढ़ावा देते थे और उसको फजीलत देते थे ताकि वो खुल के बात करे और शायद इससे बाकी लोगों को फ़ायदा हो। तो कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उन जैसे आलिम हैं और इतनी बढ़ावा अपने हर मिलने वाले को देते हैं जैसे कि वो उनसे ज़्यादा जानता हो। मोहब्बत तो ऐसी थी कि जब भी मिलते थे मुशफ़क़ाना अंदाज से मुस्कुराहट, मुतबस्सम, हमेशा मुतबस्सम, कभी शिकवा, शिकायत, गीबत, ये ऐसी चीज़ों में मैंने उनको अपना वक्त ज़ाया करते हुए नहीं देखा। किसी भी मिलने वाले के साथ किसी किस्म का शिकवा, मेरी ज़िंदगी के जो 50-55 साल उनके साथ गुजरे हैं, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि मैंने उनसे किसी की गिबत नहीं सुनी। हमेशा अच्छी बात ज़िक्र करते थे, अच्छी बात ज़िक्र करके खुश होते थे, और अल्लाह और उसके रसूल से जो उनकी निस्बत है वो तो अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं कि उसका क्या मकाम है, हम क्या कह सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि देखने वाले अपने अंदाज़े ज़रूर करते हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ का पंजाबी तर्जुमा उनके साहबजादे ने मुझे पिछले दिनों भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जो मुनकसराना आपने बोले लगावट थी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एक महीना 1-1.5 महीना पहले मुलाकात हुई थी, इत्तफाकन वो लाहौर में गया हुआ था तो असलम कमाल साहब ने उनके लिए एक किताब तस्नीफ अपनी हदिया की थी और कहा था कि हामिद साहब को तुमने जाके खुद देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका मुझ पर बड़ा एहसान बात हो था। सकती है उसके साथ। जी अगर आप कंटिन्यू करें, आप करें कंटिन्यू, आप किसी जावेद साहब ज़फर ने साहब कुछ आप कहा? कंटिन्यू करें। नहीं आप कंटिन्यू करें अपनी बात। मैं अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि असलम कमाल साहब का मुझ पर बड़ा एहसान था ये कि उन्होंने कहा कि ये किताब आपने जाके ज़ाती तौर पे उनको देनी है। तो मैं उसमें फिर आया और अस्करी 2 में जो उनका घराना है 74B में उनसे मुलाकात रही। तबीयत में थोड़े मुज़महिल लग रहे थे और उस तरह की फ्रेशनेस नहीं थी जो हमेशा नहीं। जी जी आप करें कंटिन्यू।
वो दरमियान में। हाँ जी, आप करें, आप जी करें जी। बात। तो लेकिन उन्होंने कोई शिकायत ना अपनी तबीयत की, ना सेहत की, ना ही किसी किस्म की और मनफी बातें, जिसमें आजकल जो भी अहबाब मिलते हैं वो कोई ना कोई मनफी बात किसी ना किसी से मुंसलिक ज़रूर कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उनको अपनी ज़ुबान जो दी थी वो अपने और अपने नबी के ज़िक्र की शान के लिए दी थी, और जिस मखलूक से उनका राब्ता था उसकी खिदमत के लिए दी थी, और ये हक़ उन्होंने कमा हक़्क़हू अदा किया। इसका अजर अल्लाह ही दे सकता है, और वो ज़रूर देगा, क्योंकि वो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। मुझे यकीन है वो जन्नतुल फ़िरदौस में जिस मकाम पे होंगे वो बहुत आला मकामात में से एक होगा। अल्लाह का फ़ज़ल उन पर होगा, और उनकी जो खूबियों की जो मिसालें हैं उनमें क्या दें। सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि इतने खूबसूरत फ़र्ज़ंद छोड़े हैं उन्होंने, क्योंकि अपने बाप का ज़िक्र इस मोहब्बत से और इस ताज़ीम से करते हैं कि बड़े-बड़े रईस लोगों की औलाद को मैंने अपने वालिदैन को इस तरह याद करते नहीं देखा। ये अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपने वालिद का सदका जारिया हैं। अल्लाह ताला इनको ये इस्तकामत बख्शे, अपनी वालिदा की खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अपने बाप को याद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उनके जानने वालों से जो मोहब्बत करते हैं, मुझ जैसे जो नाचीज़ लोग हैं, उनका ये इतना ख़याल करते हैं, ये ताल्लुक़ जारी रहे, ताकि मैं इनके अंदर इनके बाप की शक्ल हमेशा देखता रहूँ और उसके लिए दुआ गो रहूँ। जी अंकल, बहुत अब शुक्रिया आपका, मैं आपकी मोहब्बतों का। और आई थिंक वी ये डोंट कहना हैव चाह रहा था, वर्ड्स टू। जी 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 सुहेब, मैं जी जी ये अंकल, कहना चाह रहा था जी जी बोलिए कि अंकल। मियाँ खुदायार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मुझे मैसेज आया अभी कि मैं 25-30 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मैं उनके कनेक्ट हो जाए। साथ शामिल हूँ। जी, मियाँ खुदायार मियाँ खुदायार साहब कनेक्टेड हैं? जी कनेक्टेड हैं, और वो पता नहीं आपसे क्यों नहीं कनेक्शन उनका हो रहा, बाहर का अच्छा, उन्होंने नहीं, जिक्र अगर किया। अगर 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 कनेक्टेड हैं तो आई कैन रिक्वेस्ट हिम टू टॉक, लेकिन मेरा ख्याल नहीं शायद वो कनेक्टेड है। हो सकता है वो वो कनेक्ट कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी टेक्निकल वजह से वो कनेक्ट नहीं जी हो ठीक है। पा रहा है, लेकिन वो अच्छा जी, मैं उनको मैं चेक कर लेता हूँ जी दूसरे नंबर से। अगर आपके पास नंबर है तो उनका नंबर जरा आप भिजवा जी, दीजिएगा। मैं आपको उनको उनका नंबर मैं आपको भी दे सकता हूँ। 1 मिनट ज़रा, ये है खुदायार का नंबर है जनाब। ठहरिए ज़रा, कॉन्टैक्ट में मुझे जाना पड़ेगा। ये है जी, उनका नंबर है जी 0300 नोट करना है जी सर। 0300 8855 0219। 8825 नंबर मिल गया आपको? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 0300 जी जी 855 जी 0219, ये नंबर है। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू अंकल। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ सादिक सादिक डार साहब से कि अगर वो काइंडली, डॉक्टर सादिक डार साहब अनम्यूट जरा कर लेंगे जी। अच्छा जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमन साहब के साथ मेरा बहुत पुराना तलक है यूनिवर्सिटी के दौर से, और बड़े अच्छे दोस्त थे। और कई मौक़ों पर मतलब पिछले दिनों में मैं बीमार रहा कुछ, तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त के साथ वो कॉल करते रहे, बल्कि दिन पहले बड़ी असरार के साथ अहमद साहब बस अपनी ज़ात में एक अंजमन थे। जब भी देखो भागे भागे किसी न किसी चीज़ के पीछे। अंकल आपकी आवाज जरा
ब्रेक हो रही है। अगर आप एक दफा दोबारा कनेक्ट करें, हम वापस आते हैं आपके ऊपर। मैं अंकल फरूक करीम कुरैशी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा अगर कुछ प्लीज, while we come back to Uncle Sadiq Dar. फरूक हैं अंकल? अंकल फरूक, आपको आ रही है आवाज? अच्छा, ब्रिगेडियर फरोग अंजुम अंकल, आपने स्टार्ट किया था, अगर आप कुछ दोबारा से जरा, इफ यू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। अंकल अनम्यूट कर लें। हाँ, अनम्यूट कर लिया। अच्छा, मैं बेटा ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कल हामिद से मुलाकात अगर वो नहीं भी होती थी तो भी उनसे मुलाकात रहती थी मेरी। मुझे उनके जो अशार याद हैं और जो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तुम कहो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कहो। उनका एक शेर है जो कि मैं अपने दोस्तों को बहुत सुनाया करता था कि मैं अपने दिल की कोई वसीयत ना कर सका, मैं अपने दिल की कोई वसीयत ना कर सका, कितना बड़ा खजाना लहद में उतर गया। मैं अपने दिल की कोई वसीयत न कर सका, कितना बड़ा खजाना लहद में उतर गया। हामिद वो कोई ख्वाब था, आया भी गया भी। हामिद वो कोई ख्वाब था, आया भी गया भी, और मैं कि कई रोज से सोया भी नहीं। क्या क्या उनके मुझे इस वक्त सच्ची बात है कि मैं अगली दफा जब कभी मौका मिलेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड देखिए, करने का काम ये तो बड़ा अच्छी बात हो गई। कुछ शेर आपको याद है, कुछ हमें याद है, कुछ लिखे हुए होंगे, ये इकट्ठे होने चाहिए सारे के सारे। अच्छा, और उनके अशार में, अच्छा मेरे पास उनके हाथ के लिखे हुए चनन पीर के बारे में उन्होंने मुझे लिख कर दिया। बहावलपुर में जब वो थे तो मुझे उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ एक इतना सा कागज दिया, वो मुझे इनायत करते थे। ही वाज सो काइंड टू मी। वो इनायत करते कि लो ये रखो अपने पास। मेरे पास उनकी जामे मोहम्मदी शरीफ में भी वो कुछ अरसा रहे हैं, जंग के करीब। जी। हाँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक जंग से था और वो जानते थे और मैं उनसे शेयर करता था, तो वो अपनी याददाश्तें शेयर करते थे और बड़े लतीफ अंदाज में। वो जिसने भी कहा, मुझे उनका साहब का नाम याद नहीं, कि उनकी सोच में, उनके अंदाज में, उनकी शख्सियत में सिवाय लताफत के और अजमत के और कोई चीज थी नहीं। इतने काइंड, वाकई। अच्छा, फिर एहसास हमें उस वक्त होता है जब हम महरूम हो जाते हैं। खैर मैंने बड़ा इस्तिफादा किया उनसे। जब मैं बहुत परेशान होता था या बहुत ज्यादा परागंदा होता था तो मैं उनके पास चला जाया करता था। जुम्मे की नमाज के बाद भी आई वुड टेक हिम टू माय हाउस। हमारे चकराला स्कीम 3 में मस्जिद जो होती थी, जहाँ वो जो कि में नमाज पढ़ते थे, वो हमारे घर में बराबर फासले पे थी। तो मैं कहता था कि मस्जिद से निकल के यूं होके जाएंगे मेरे घर से होके। तो हम वहां, मैं कहता था थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हम बैठे रहते थे। और अगर मैं उनके घर चला जाता था तो फिर मेरा उठने को जी नहीं होता था। तो सच अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छा। फिर इमाम शामिल के बारे में जब उन्होंने जो किताब लिखी, तो फौज में उनकी पहचान ही ये हो गई कि वो उस वक्त कैप्टन थे या मेजर हूं, नहीं कैप्टन थे, कि वो कैप्टन हामिद इमाम शामिल वाले। He was known जी, as, वहां तो ये फौज में तो ये तकल्लुफ किया जाता था, इमाम शामिल वाले उन्हें कहा जाता था। लाहौर में वो इस्लामिया कॉलेज में थे जब उनकी किताब छपी, तो उन्हें अहबाब इमाम शामिल ही कहते थे।
لیکن سر اچھا مجھے دیکھیں، مجھے اس وقت جو اندر سے میرے ایک یوں کر کے ایک خواہش مچل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کاش جو کچھ میں فیل کرتا تھا ان کی موجودگی میں اور ان کے امپیکٹ میں، کاش کہ وہ میں دکھا سکوں. میں وہ دکھا نہیں سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ان سے مل کے اور ان کی وجہ سے میں کیا فیل کیا کرتا تھا، کیا محسوس کیا کرتا تھا. ان کے اشعار مجھے یاد آئیں گے اور میں ان سے ہی میں میری ساری رات گزر جاتی تھی اسی کے بیسس پہ، اسی کے بیسس پہ. مجھے وہ جب نئے لاہور آئے تو انہوں نے ایک غزل لکھی، اس کا مقطع جو تھا وہ ذرا تھوڑا سا ایسے تھا کہ ذرا ان کی فیلنگ اس میں بہت زیادہ تھی لیکن ذرا روایت سے ہٹ کے تھا. تو وہ مقطع تھا کہ اجنبی دیس میں حامد صاحب، اجنبی دیس میں حامد صاحب، صاحب کوئی کہتا نہیں حامد ہوئے. اچھا روایت سے روایت ہماری دوستی کی بنیاد ہی اس بات پہ پڑی کہ اگلی دفعہ جب وہ آئے تو میں پچھلے آئی واز اے بیک بینچر، تو میں نے پیچھے سے آوازہ لگایا، میں نے کہا حامد ہوئے. تو ان سے ہماری دوستی ہو گئی ان کے اس مقطع کی وجہ سے. شعر میں ان کے روایت سے ہٹ کر اور عام جو مروج جو ترکیبیں ہیں ان سے ہٹ کر بہت ہیں. چنن پیر جو انہوں نے باندھا ہے، چنن پیر کے بارے میں ان کا ایک بڑی طویل ان کی ایک ہے نظم، وہ میرے پاس شاید کہیں ہوئے گی، میں نکالوں گا. اویلیبل ہے ہمارے پاس بھی ہے جی، ہمارے پاس اویلیبل ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شاعری کا جو ان کی پوری ہے وہ ساری کی ساری جی الحمدللہ محفوظ ہے. ان کے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی جی الحمدللہ سارے اویلیبل ہیں، اور وہ کمپوز فارم میں بھی اس وقت اویلیبل ہیں، جس کو اظہار تشکر کے نام سے ایک کتابی مجموعے کے نام پہ انشاءاللہ وہ بس اب ذرا کچھ اس کی کیونکہ ہے پروف ریڈنگ کی فیز میں ہے وہ، اور وہ بھی ابو نے پروف ریڈنگ کے لیے اپنے کسی کو دی ہوئی تھی، تو میں آپ لوگوں کو بھی بلکہ بھجوا دوں گا وہ ان ٹرمز آف کہ وہ پروف ریڈنگ اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں سے ہو جائیں انشاءاللہ. ایک بات مجھے یاد ہے، نثر کی پروف ریڈنگ اور شاعری کی پروف ریڈنگ میں فرق ہے، ذرا یہ بڑا فرق، بڑی موٹا چیز ہے. جی وہ انکل ابو نے خود ہی کسی کو کیونکہ پروف ریڈنگ کے لیے دی تھی، تو آئی ہوپ کہ ٹھیک ہوگا. لیکن انکل شعیب اور میں آپ کو بھی انکل میں اس کی کاپی میرے پاس ہے تو I'll send that to you. میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا یہ. جی انکل تھینک یو. ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ان کو یہ مخطوطات تلاش کرنے کا اور ان لوگوں سے ملنے کا جن کے پاس پرانے مخطوطات ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے، وہ دیکھنے کے لیے میں ان کے ساتھ کئی دفعہ گیا ہوں کہ یہ فلانے کے پاس فلانا ایک خط فلانے کے نام لکھا ہوا ہے، چلو آپ وہ دیکھ کے آئے. امیجن یار گریٹنیس آف دا پرسن. نہیں ہمارے پاس دنیا میں وہ کسی اور دنیا کے آدمی تھے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ میاں یہ اس مقام پہ فائز کرتا ہے. پرانے مخطوطات کے لیے میں اور وہ گھنٹوں جا کے کسی سے جا کے ملنے کے لیے، اور وہاں پہ بیٹھتے تھے اور انتظار کرتے تھے، اور پھر جب وہ شروع کر دیتے تھے اپنا مجموعہ دکھانا تو اس میں وہ غرق ہو جاتے تھے. اچھا میں کبھی کبھی کہتا تھا کہ سر اب چلیں کہ تو کہتے تھے دیکھیے بھائی یہ نسخہ کیا ہے، کیا اس کی اہمیت. بہت بڑی عظمت کی چیز تھی، بہت بڑی عظمت کا احساس ہوتا ہے حامد صاحب کا نام لے کر، حامد صاحب کا ذکر کر کے، اور سر کا. میں تو حامد صاحب تو اب میں کہہ رہا ہوں، میں تو نام لیتا نہیں ان کا، میں تو سر کہتا ہوں ان کو، اور اب میں اس طرح سے ان کو مخاطب کر سک رہا ہوں شاید. تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. اور پھر جو میری اچھا زاویہ اکیڈمی کے جو وہاں پہ انہوں نے یہ جو تھی سیٹلائٹ ٹاؤن میں کچھ کالجز بنائے تھے، اس کے لیے وہ مجھے حکم دیتے تھے کہ آؤ وہ سلیکشن کرنی ہے کسی کی، تو اس میں بھی میں جاتا تھا اور مجھے بہت عزت دیتے تھے. بہت مجھے فخر ہے. بہت شکریہ انکل آپ کی محبتوں کا، اور انشاءاللہ ہم will try to keep the connection انشاءاللہ. ان کی یہ یادداشتیں کہیں کسی شکل میں ضرور کریے گا.
याददाश्तें उनकी इकट्ठी कीजिएगा, इंशाल्लाह लोगों के इंशाल्लाह इन लोगों को तासुर, और इन- इस मीटिंग की जो है ये इनपुट है सारी, इसको रिकॉर्ड करके किसी शक्ल में जरूर लाइएगा। अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, वैसे वो वो रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे और इंशाल्लाह जो इनपुट्स हैं वो आप लोगों से शेयर भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अब रिक्वेस्ट जी बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा साहबजादा साजिदुर रहमान साहब जो हैं वो तशरीफ रखते हैं, बड़े मारूफ दीनी स्कॉलर भी हैं और अब्बू की बड़ी खसूसी उनके साथ मोहब्बत और निस्बत थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकल साहबजादा साजिदुर रहमान से कि अगर वो कुछ कलमात अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इंतहाई अजीजान गिरामी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरे मोहतरम लायक सद इज्जत व एहतराम भाई कर्नल हामिद साहब मरहूम के इस ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत का मौका फराहम किया है। इन लोगों की याद, इनका जिक्र मैं इबादत समझता हूँ। कर्नल हामिद साहब के साथ ताल्लुक का आगाज 70 की दहाई के अवाखिर में हुआ, जब मैं इदारा तहकीकात इस्लामी में था, और उनका आना जाना ग्रामी मर्तबत अपने अहद का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर महमूद अहमद गाजी रहमहुल्लाह के पास होता था। उन्हीं की वसातत से मेरा उनके साथ तारुफ हुआ और फिर हर मुलाकात ताल्लुकात में इजाफे का सबब बनी। उनके साथ ताल्लुकात को मजीद मुहकमतर होने का वसीला बनी, और फिर उनके साथ ये ताल्लुक उनके तादम वापसी उसी तरह कायम और दायम रहा। मोहब्बत में इजाफा होता रहा, ताल्लुक मुहकम होता रहा, और वो ताल्लुक इतना मुहकम हुआ, इतना मजबूत हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उनकी नमाज जनाजा की इमामत का शरफ अता फरमाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज, इफ्तिखार है। कर्नल हामिद साहब अपने अहद की एक इंतहाई मुनफरिद शख्सियत थी। मैंने उनकी शख्सियत को कई पहलुओं से देखा है। कर्नल साहब बिलाशुबा अंग्रेजी के इंतहाई कोहना मश्क उस्ताद थे। बिलाशुबा वो बहुत ही कादिरुल कलाम शायर थे, बहुत अच्छे मुसन्निफ थे, नक़ाद थे, इकबालियात पर गहरा अबूर रखते थे। लेकिन मुझे उनकी शख्सियत का जो नुमायां पहलू हमेशा पेशे नजर रहा है, वो उनकी रूहानी मेराज थी। कर्नल साहब मरहूम सिर्फ तसव्वुफ की थ्योरी से वाकिफ व आगाह नहीं थे, उन पर अबूर नहीं रखते थे, वो प्रैक्टिसिंग सूफी थे, वो शबे जिंदादार थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र व फिक्र में अपना इंतहाई बुलंद मकाम रखते थे, और यही वो उनकी सिफत खास थी जो मुझे हर रोज उनसे करीब से करीब तर करती चली गई। और फिर एक खास कदर मुश्तरक थी
کہ وہ نقشبندی صوفیہ سے گہرا تعلق عقیدت رکھتے تھے، خاص طور پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کا گہرا روحانی رابطہ تھا۔ وہ جہاں حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو انقلابی کارنامے ہیں ان سے متاثر تھے، وہاں مکتوبات پر گہرا عبور رکھتے تھے۔ مجھ سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ مکتوبات میں بیان کیے گئے علمی نکات کی وضاحت و صراحت فرمایا کرتے تھے، اور اس اعتبار سے وہ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی مقام سے بھی بہت متاثر تھے۔ وہ سوختہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور کا نام آتے ہی ان کی آنکھیں ڈبڈبانے لگتی تھی۔ کیوں نہ ہو، پھر ادھر سے مدینہ طیبہ سے جو آپ پر نظر التفات تھی، مجھے معلوم نہیں کہ آج کی اس مجلس میں اس کا اظہار مناسب ہے یا نہیں، لیکن ان کے جاننے والے سبھی جانتے ہیں، اور جو قریبی تعلق رکھتے ہیں وہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ انہیں کئی مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار اقدس سے سرفراز فرمایا۔ اور بچے، میرے عزیز بیٹے، یقیناً جانتے ہوں گے کہ کئی مراحل پر جب انہیں رہنمائی کی اشد ضرورت محسوس ہوئی تو انہیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس ان کی رہنمائی فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عہد کے ان گنے چنے لوگوں کو فضیلت حاصل ہے جو مقرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب خلق رسول کا آئینہ دار تھے۔ میں نے ہمیشہ ان کی جبین کو کھلا، خندہ اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خلق کے موتی اپنی جھولی میں بھرنے والے کا خاصہ ہوتا ہے کہ ملنے والا جب بھی اسے ملے تو وہ اسے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ڈاکٹر صاحب محترم کو میں نے ہمیشہ جمال کی صورت میں دیکھا ہے، مجھے ان کے چہرے پر جلال کی کیفیت کو دیکھنے کا کوئی موقع میسر نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بے شمار تلامذہ ہیں، ان کے بے حد بڑی تعداد میں محبت کرنے والے مخلصین ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں۔ اور پھر ابھی شعیب صاحب، فروغ صاحب جس طریقے سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں محبت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد کہ جب کوئی اس دنیا سے جائے تو وہ خوش نصیب ہے کہ کچھ پیچھے لوگ ایسے موجود ہوں جو کہیں کہ ایک
बेहतरीन इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया है। और कितना खुशनसीब है वो शख्स कि जिसको खराज मोहब्बत पेश करने वाले अहले इल्म हों, साहिबाने नजर हों, और खास तौर पर वो जो उसकी जिंदगी के शाहिद हों, उसकी जिंदगी के लम्हा लम्हा से वाकिफ हों, उसके बचपन, उसके लड़कपन, उसकी जवानी और उसकी कहूलत के लम्हात से वो पूरी तरह आशना व आगाह हों, और वो अपनी शहादत दुनिया के सामने पेश कर रहे हों कि जो हमसे चला गया है वो एक बेहतरीन इंसान था। डॉक्टर साहब मोहतरम एक अहद-आफरीन शख्सियत थे। उनके बाद पहलू जिंदगी के ऐसे हैं जिनका मैं समझता हूं इस मजलिस में जिक्र चंदा मुनासिब नहीं है, लेकिन वो मैं ये जरूर कहूंगा कि वो एक फौलादी शख्सियत थी। उनको जिंदगी में बहुत से मुश्किल मराहिल को सर करना पड़ा, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि आंधियों और तूफानों ने उनसे टकराकर अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन डॉक्टर साहब के पाया इस्तिकलाल में लर्जिश नहीं आई। यही इकबाल का मर्द मोमिन है और यही हकीकी मोमिन की निशानी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया अंकल साहिबजादा साजिदुर रहमान साहब, आपकी मोहब्बत भरे अल्फाज का, और यकीनन आपकी हौसला अफजाई और उसका बहुत शुक्रिया भी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद से कि अगर वो कुछ अबू के बारे में कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि मैं कर्नल मोहम्मद हामिद साहब के हवाले से कुछ इजहार करूं। इतने बड़े बड़े अकाबिर और असातिज़ा की मौजूदगी में मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। कर्नल मोहम्मद हामिद साहब से 25 साल का मेरा ताल्लुक़ है, और वो शफ़क़त का एक ऐसा निशान थे और एक ऐसे सायादार शजर थे कि हर मौके पर, हर मर्तबा उन्होंने अपनी शफ़क़त के हिसार में मुझे रखा। उनका बुनियादी ताल्लुक़ चूँकि जालंधर से था, तो हमारे अटक में एक बुज़ुर्ग हज़रत नज़र साबरी साहब थे, जिनके साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत गहरा ताल्लुक़ था, और वहीं उन्हीं की वसातत से मुझे भी कर्नल साहब से हम कलाम होने का मौका मिला। तो कर्नल साहब ने अटकनामा के उन्वान से जो नज़्म लिखी, उसमें उनकी शफ़क़त और मोहब्बत का रंग, अटक से उनकी जो मोहब्बत थी उसका इजहार है। मुझ नाचीज़ पर भी उन्होंने 2-3 अशार लिखे। ये उनका बड़ापन था। वो एक तहजीबी आदमी थे और कुरून ऊला के मुसलमान थे, यानी उनका तसव्वुफ़ के साथ अभी साहबजादा साहब बड़ा अच्छा बयान कर रहे थे कि वो अमलन सूफ़ी थे, यानी तसव्वुफ़ की उस शाख से उनका ताल्लुक़ था जो समाज को बेहतर करने, लोगों के रवैयों में तब्दीली लाने और इस्लाह फलाह के लिए काम करने से इबारत है। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस काम में सर्फ की। उनकी किताबें उनके अंदर के अहवाल और उनकी फ़िक्र का वो मज़र हैं, और जैसा कि शोएब बिन अजीज़ साहब ने या ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया कि वो बहुत आला पाया के शायर थे। फ़ारसी, पंजाबी और उर्दू में उन्होंने बड़ी महारत का वो सबूत दिया। जब वो कसीदा बुर्दा शरीफ का पंजाबी तर्जमा उन्होंने किया, तो उनकी शफ़क़त आप मुलाज़ा करें कि उन्होंने मुझे उसे जदीद इमला के मुताबिक करने और उसको देखने का मुझे हुक्म दिया। मैंने उसे जब देखा और उसमें कुछ तब्दीलियाँ तजवीज़ की, तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ, यानी एक इतना बड़ा आदमी एक तालिब इल्म की बात को इतनी तवज्जो के साथ सुनता है, और फिर ना सिर्फ उसको तब्दील किया बल्कि मुझे बाज़ मौक़ों पर वो अपना उस्ताद कहते थे, और ये उनकी शफ़क़त थी, उनका बड़ापन था। और जब उस किताब की छोटी सी तारफ़ी तकरीब सेटेलाइट टाउन में उन्होंने रखी या ज़ाविया के किसी इदारे में, तो मुझे भी ख़ुसूसी तौर पर वहाँ
बुलवाया और इजहार ख्याल का मौका दिया। तो मेरी एक छोटी सी मसनवी थी किताब नामा, जो किताब के उरूज ज़वाल की कहानी है, वो उर्दू में मैंने लिखी थी। तो कर्नल साहब ने मुझे ईद से कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसका फ़ारसी में तर्जुमा कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त और वो उसकी बात है, फ़ख्र की। अब मालूम नहीं कि वो तर्जुमा उन्होंने मुकम्मल किया या नहीं, लेकिन उनका इसका इजहार करना ही मेरे लिए बहुत बुलंदी का बायस है और इज़्ज़त का बायस है। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें आला अलीयीन में बहुत बुलंद मकाम से नवाजे। वो यकीनन हमारे अहद की इज़्ज़त थे। उन्होंने जो काम भी किए हैं वो इस काबिल हैं कि उनका बार बार तज़किरा हो, और जो चीज़ें उनकी हनूज़ गैर मतबूआ हैं उनके साहबजादगान और वाबस्तगान उसकी ज़रूर इशात का एहतमाम करें। और कुछ चीज़ें मेरे पास भी उनकी हैं। उन्होंने हज़रत नज़र साबरी साहब के कुछ फ़ारसी कलाम का उर्दू में तर्जुमा किया था, तो वो उनके हाथ का लिखा हुआ वो मेरे पास मौजूद है। उनकी एक किताब, साबरी साहब की एक किताब फ़ारसी में मैंने मुरतब की थी, तो उसकी तारफ़ी तकरीब अटक में रखी थी, और मेरी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर वो मेरे साथ अटक भी तशरीफ़ ले गए थे, और उस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी के उन्होंने शिरकत की थी। तो बहुत सी यादें हैं, लेकिन ये चूँकि मौका नहीं है, अल्लाह करीम से इस्तदा है, दुआ है कि उनके मकामात में और ज़्यादा इजाफ़ा करे और उनकी रूह को शादमान रखे। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद महमूद साहब। और ये अंकल फरूक अंजुम मेरा ख्याल है अटकनामा दिखा रहे हैं। अंकल शुक्रिया, हमने देख लिया, बहुत शुक्रिया आपका। और ये मेरा ख्याल है कुछ कॉपीज इसकी अवेलेबल हैं, तो मैं इंशाल्लाह कुछ हम रीप्रिंट में ला रहे हैं, तो इंशाल्लाह सब तक पहुंचाएंगे उसको। अब मेरी दरख्वास्त है अंकल जलील आली साहब से, उर्दू के मारूफ शायर भी हैं, और हमें एजाज़ हासिल है कि हमारे उस्ताद भी हैं FG सैयद कॉलेज में। तो अंकल जलील आली से दरख्वास्त है कि अंकल अगर आप काइंडली कुछ अबू के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी सॉरी कि मैं ज़रा ताख़ीर से शामिल हुआ। मैं दो दोस्तों की गुफ्तगू सुन सका, तो लेकिन मुझे इस बात का शरफ हासिल है कि मैं कर्नल हामिद साहब का महल्लेदार, कोई 20-25 साल से उनसे ताल्लुक़ है, और बहुत सारी नशिस्तें उनके घर में यानी दू बदू हुई आमने सामने, सिर्फ जिसमें हम दो बंदे ही थे। और उसके अलावा जो मजालिस वो अपने घर में बाज़ मुनाक़द करवाते थे, कभी कोई नातिया मुशायरा, कभी कोई मुज़ाकरा, तो उसमें भी मैं शरीक होता रहा। उन्होंने मेरी एक मजमूए पर मज़मून भी बड़ी मोहब्बत से लिखा। फिर उनका जो कसीदा बुर्दा शरीफ का उर्दू का ट्रांसलेशन थी, वो मैंने अशात से पहले मुझे शरफ हासिल हुआ उसे देखने का। तो वो हमारी रवायती इल्म के बहुत ही शनासा आदमी थे, और मैं ये महसूस करता था कि कभी उन्होंने ये महसूस नहीं किया सीखने के अमल में ये कि भाई ये बात जो है कोई मैं ताख़ीर कर गया हूँ, या ये जो है अब ये काम करने का नहीं। तो वो हर वक्त कोई भी नई बात सीखने के लिए, जानने के लिए तैयार रहते थे। मसलन मुझे याद है कि हदीस का दर्स बाकायदा एक आदमी उन्होंने अरेंज किया हुआ था इसके लिए, और वो एक ख़ास वक्त में डेली आते थे उनके पास, और उन्हें हदीस का हरफन हरफन और लफ्ज़न लफ्ज़न सबक दिया करते थे। अच्छा, मेरे ज़हन में कई दफ़ा ये बात आती थी कि ये इस तरह से सबक क्यों लेते हैं? ये जब हदीस की कुतुब खुद पढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं उन्हें खुद पढ़ लेते, और इस तरीके से क्यों एक बंदा बाकायदा हायर किया हुआ है और उसके ज़रिए से वो लेते हैं। फिर ये है कि उन्होंने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करना शुरू किया अपने इसी उम्र के आखिरी हिस्से में आके। मैं 1 सेकंड में दरवाज़ा बंद कर लूँ ज़रा। सॉरी जी, तो वो आवाज़ आ रही थी असल में साथ वाले कमरे से। तो
तो मैं समझता हूँ कि बहुत सा अच्छा शायरी का उनका जो शौक था, तो अच्छा वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहते थे। एक जमाने में बहुत इसरार के साथ वो कहा करते थे कि इकबाल के हवाले से मैं पर्चा निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सा बंदा जो है उसके लिए मुदीर के तौर पर मुनासिब रहेगा। और कभी कोई इसी तरीके से अंजुमन बनाना चाहते थे और बड़े फिक्रमंद रहा करते थे मुल्की हालात के हवाले से, तहजीबी हालात के हवाले से, और उम्मत मुसलमान की जो जिस तरीके से हम जिस ज़माने से जिन हालात से गुजर रहे हैं उनके हवाले से। अलबत्ता मुझे ये ज़रूर महसूस होता था कि उन्हें दर्दमंदी तो बहुत है, मगर वो ऐसे ही मुझे लगता था कि जैसे कुछ थोड़ा सा मैं बोल्ड हूँ ज़रा, कि भाई इस सिलसिले में वो अपना इजहार के एतबार से जो माशरे में आलमी एजेंडा लेकर कुव्वतें जो हैं बरसरे पैकार हैं, तो उनके खिलाफ ये इतना मजबूत आदमी जो है इसको जरा ज्यादा बोल्ड अंदाज से सामने आके जवाबात देने चाहिए और उस महाज को तकवीत पहुंचानी चाहिए जो बदाफती जंग लड़ रहा है इसके हवाले से। तो ये बार सूरत सूफिया के अपने तरीके कार होते हैं, तो वो चूंकि बाकायदा सूफी थे और बैत उन्होंने की, फिर उन्होंने बैत जो थी उनकी एक दो जगह से शिफ्ट भी हुई, तो ये अमूर में इन अमूर के बारे में मैं इतना ज्यादा शनासा नहीं हूँ, लेकिन वो एक अमली तौर पर यानी साहब बैत वो शख्स थे। और ये बात तो दोस्तों जो मैंने सुनी एक दो दोस्तों की बातें कि हमने उनके मुंह से कभी किसी की गीबत नहीं सुनी और हर वक्त वो अच्छा पहलू देखा करते थे कि कोई भी वाकया आप बयान करें, किसी दोस्त का भी जिक्र करें, तो कोई ना कोई उसमें से अच्छा पहलू वो तलाश करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये अपने नफ्स की एक ख़ास दर्जे तक तरबियत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे जो दोस्त अहबाब थे उनमें इनके साथ जो मेरी रफ़ाकत थी या दोस्ताना ताल्लुक था वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम असासा है। बहुत मोहब्बत। जी बहुत शुक्रिया अंकल, और आपकी मोहब्बतों का और आपकी शफकत का जो हमेशा हमारे साथ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैप्टन सलीम साहब से कि अगर वो काइंडली कुछ कलमात अदा कर दें। अंकल आप सुन सकते हैं कैप्टन सलीम साहब? अच्छा, आई थिंक उनको शायद आवाज नहीं आ रही। अंकल सादिक डार, आप जरा दोबारा, आपकी बात हम नहीं सुन पाए थे पूरी, अगर आप अनम्यूट करके। फोन करें। मेरा ख्याल है जी कनेक्टिविटी का शायद अंकल सादिक को मसला आ रहा है और वो शायद हमें उनकी आवाज नहीं सुनाई दे पा रही। तो अंकल फारूक आप कुछ कहना चाहेंगे? अंकल फारूक, अंकल सलीम का माइक नहीं काम कर रहा। और हाँ, ये थोड़ी मुझे देर हो गई अनम्यूट करने में। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि मुझे जो चीजें याद आ गई ना, मैंने बैठ के कागज पे ये लिखा, और वही बात है कि जिस जमाने में मैंने उनसे ये सुना शेर और उन्होंने सुनाया, वो उसका कोई मतलब और उसकी कैफियत जो है ना, वो मैं अदा नहीं कर सकता।
किसी की सर्द उंगलियों को थाम कर कहा ये मैंने दोस्त जिंदगी उदास है, किसी की सर्द उंगलियों को थाम कर कहा ये मैंने दोस्त जिंदगी उदास है, बस एक अश्क उसकी आंख में ठहर के रह गया, बस एक अश्क उसकी आंख में ठहर के रह गया, मगर वो ये न कह सका कि दोस्त वाकई ये जिंदगी उदास है। ये मुझे याद आ गया, मैंने आपको सुना दिया, लेकिन मैं अदा नहीं कर सकता कि जब वो मुझे बताया करते थे शेर, मुझे उन्होंने शेर का शऊर दिया है मुझे उन्होंने। वो मेरे उस्ताद थे पीएमए में, आई वाज हिज कैडेट, अंग्रेजी के उस्ताद थे। हमारा एक क्लब था, लिटरेरी क्लब, उसमें हम कम्युनिकेट किया करते थे। उसके बाद मैं वहां पोस्ट हो गया, तो मेरे उस्ताद भी रहे और मेरे शफी दोस्त भी बन गए। तो फिर ये मुझे सुनाया करते थे, और मुझे शेर का शऊर खैर मिला, वालिदैन से भी मिला, खानदान से भी मिला, लेकिन कल्हाम से भी मिला मुझे। जी उसका बहुत एहसास, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंकल। अंदाज, उसका कहना, उसका पढ़ना, ये सब मुझे कल्हाम ने बख्शा है। अल्लाह उनको करवट करवट चैन नसीब करे और ऊंचे मकाम अता करे। बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया अंकल। आई थिंक आज की इस महफिल का जो इख्तिताम है वो अब्बू के एक इज़हारे तशक्कुर से करते हैं, जो उन्होंने लिखा था एक बड़े उस मौके पे 1995 में व्हेन ही वाज यू नो के वो जरा मुश्किल में थे। तो मैं पढ़ता हूँ ये, मैं उन लाखों हजारों दुख भरे दिल से मेरी खातिर उठे हाथों का इजहार तशक्कुर किस तरह लिखूं, जिन्हें मैं जानता कब हूँ, जो मेरे वास्ते सजदों में पढ़कर रोते रहते हैं, जो मेरे गम के अंधेरे सफर में रोशनी देते हुए मीनार हैं, जो मुझसे कहते हैं कि रहमत जाते वाला की बड़ी वाफिर है हामिद जी, उसी का आसरा बस है, उसी का आसरा बस है। वो माएं और बहनें जिनके दुपट्टे मेरी खातिर बहे अश्कों से गीले हैं, मदीहा की तरह से बेटियां मेरी जो पिछले पहर उठकर बैठ जाती हैं, जो जुल्मो जोर के सब आहनी हाथों को अपनी चूड़ियों से तोड़ सकती हैं, वो अपनी सिसकियों आहों से तूफानों के रुख को मोड़ सकती हैं। नहीफो नातवा आवाज माओ की मेरी खातिर फलक से पार जाती है, वहां से लेके आती है वो संदेशे कि सुन सुनकर जिन्हें मैं आज तक जिंदा हूँ, मेरा अज़्म जिंदा है। मेरे अल्लाह, मैं उन नातवा लोगों की अश्कों और आहों का तशक्कुर किस तरह लिखूं। मेरे अल्लाह, तू अपने फरिश्तों को ये कह, उनके दिलों को नूर से भर दे, तो उनकी आरज़ुओं के तही दामन को भर दे, उनके अरमानों की खेती पर तेरी रहमत के छींटे हों। मेरे अल्लाह, तू इतनी बहुत अनजानी, अनदेखी, मोहब्बत से भरी बाहों में सिमटी सब दुआओं को कबूलियत अता कर दे। तुझे मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर का वसीला पेश करता हूँ। सलाम कल हामिद को, सलाम कल हामिद। ये अब्बू का लिखा हुआ है जी, AFIC में इसके नीचे भी आ रहा है। ये मैं आपको ये मैं अंकल आपको ये भिजवा भी दूंगा। मेरे पास उनके हाथ का लिखा हुआ भी है। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके साथ ही जी मैं अपनी वालदा मोहतरमा की तरफ से और अपने तमाम अहले खाना की तरफ से, सुहेब मेरे से बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हारिस जो आज किसी वजह से शिरकत नहीं कर सके, और अपनी बहन मदीहा, हामिद, इन सारों की तरफ से आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से आज ये वक्त निकाला, और जितनी मोहब्बतें आज की इस महफिल में मिली, तो इंशाल्लाह
हम कोशिश करेंगे कि इस मोहब्बतों के सिलसिले को जारी रखें और इस तरह की महफिल कभी कभी हम आपस में करें, और जिस तरह आप लोगों ने जो तजावीज़ दी उनकी अनपब्लिश्ड वर्क के हवाले से और कुछ रीप्रिंट्स के हवाले से, वो ऑलरेडी हमने कुछ काम स्टार्ट कर दिया है, और कुछ काम ऐसा है कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब भी है, और उसके अंदर जो है कुछ ज़हीम काम है, जिस तरह फतावा आलमगीरी है स्पेशली, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम जारी रखेंगे। तो उसमें आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि जहाँ हमें, क्योंकि वो जो अदबी उनका शौक था, या वो जो एक स्पेशल वो थी, उसके लिए डेफिनेटली उस पाए के लोगों की भी ज़रूरत है, और आप सारे लोग माशाल्लाह उस पाए के हैं कि जिसके अंदर हम इंशाल्लाह आपसे वो चीज़ें शेयर भी करेंगे, और आपकी रहनुमाई की और तवज्जो की ज़रूरत भी होगी उसके लिए। तो इंशाल्लाह इस तरह की महफ़िलों को कोशिश करेंगे जारी रखने की, और आप लोगों की मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी सारी फैमिली की तरफ से। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी बहुत मच। थैंक यू बेटा, खुदा ब्लेस, खुदा हाफिज, थैंक यू।